Good evening, students. Am I audible clearly? Okay. So today we are going to start a new topic, that is from hydrocarbons, alkenes. And in surface chemistry, as per you, one topic is left, and that is catalysis. But for catalysis, we require chemical kinetics topics also, like collision theory, in which we can learn activation energy, etc., and energy profile diagrams. Actually, a catalyst, working of catalyst depends on that activation energy concept only. So we'll discuss that catalysis after completion of chemical kinetics. Okay. You copy or start from other side, Ami, as a wish. Okay. So already you completed your alkanes chapter, no? Alkanes. Yes or no? So yeah, today we are going to start very, very important one, alkenes, unsaturated hydrocarbons. Okay. So in case of unsaturated hydrocarbons, I think already in hydrocarbons you are discussed that is saturated CN H2N plus 2. Yes or no? And case of unsaturated, again we have two types. In unsaturated hydrocarbons, we have two types of hydrocarbons. They are alkenes and alkynes. Okay, alkenes and alkynes. In case of alkenes, what is general formula? CnH2n. Whereas in case of alkynes, it is CnH2n minus 2. Okay, and these are only saturated, containing carbon-carbon single bond. Saturated hydrocarbons. Okay. Example here, alkanes. Okay. So in case of unsaturated hydrocarbons, the most important one, alkanes. Our remaining reactions of alkynes, जितने भी alkynes का reactions है, almost वो depend करेगा alkene का properties के ऊपर ही. Means similar properties होगा, like electrophilic addition reactions, ozonolysis. जो भी होगा मतलब basic होगा alkenes में. So alkenes थोड़ा lengthy topic है और alkynes both simple and easy and short topic है. Maximum 3 to 4 classes लेगा alkynes. But maximum days हम लोग डिस्कस करेंगे alkenes. ठीक है ना? तो in case of alkenes, from alkenes here, how many types of isomerism possible in alkenes? Isomerism in alkenes. How many types of isomerism possible in alkenes? आइडिया है ना पूरा isomerism? बैक से में कुछ नहीं पढ़ा है बेटा, जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन दिया था, ऑलरेडी जब पढ़ चुके हैं पूरा. हो गया ना मला? ओके. देखिए आइसोमरिज्म इन alkenes. सो alkenes में क्या क्या आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा वो चेक करेंगे अभी. फर्स्ट वन, ये है हाइड्रोकार्बन्स का alkenes.
ठीक है, ऑलरेडी आपका आल्केन्स खत्म हो चुका है ना, ये स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल, ओनली ज्योमेट्रिकल, व्हाट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म? तो देखिए फर्स्ट वन फ्रॉम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा वो देखेंगे। फर्स्ट सॉरी नंबर ए लिख दिया मैं। फर्स्ट वन चेन आइसोमरिज्म। व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म? number of carbons in parent chain must be different. Yes, very good, Vidushi. Good. Number of carbons in parent chain must be different. I'm taking an example, simple example, C4H8. In C4H8, you see, you have 4 carbons. So first one, I'm writing all 4 carbons in the straight chain. और double bond मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी, in order to satisfy the valency of carbon, here we have to write 3 hydrogens, here 2 hydrogens, and here 1 hydrogen, and here 2 hydrogen. What is the name of this compound? What is the name of the compound? See, this is but1ene. Okay, but1ene. And now to write our chain isomer, we have to change number of carbons in parent chain. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, तीनों कार्बन्स को पेरेंट चेन में ले रहा हूँ और एक कार्बन को मैं साइड चेन में लिया। एंड एक यहाँ पे याद रखना है आपको, डबल बॉन्ड लोकेशन मस्ट बी सेम। ओके, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट वी आर राइटिंग डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन में ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे वैलेंस सेटिस्फाई करवाने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स एंड हियर 3 हाइड्रोजन्स एंड हियर 2 हाइड्रोजन्स। ओके, नाउ व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 2-methyl prop1ene या प्रोपेन, क्योंकि प्रोपेन में एक पोजीशन छोड़ के और कुछ पॉसिबल होगा ही नहीं। ओके, तो मिथाइल प्रोपेन, इज इट क्लियर? We cannot say isobutene. Your answer is correct, but isobutylene. Okay, Karthik, isobutylene, that is common name beta. Okay na, please note. Okay, Karthik. Completed. Okay, फिर से पीछे वाले स्लाइड नहीं पूछेंगे ना। देखिए, तो सेकेंड वन हो रहा है position isomerism. Position isomerism means the change in double bond or functional group must be different. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? Number of carbons in parent chain must be same. Okay, number of carbons in parent chain must be same. So here I'm writing 2 molecules. In both the cases, number of carbons in parent chain are same. अभी हमें क्या दिखाना है? Change in the position of double bond. तो मैं एक केस में ले रहा हूँ double bond at first position and second case में double bond at second position. Okay. Now, in order to write its tetravalency, here I'm writing 3 hydrogens, 2 hydrogens, 1, and here 2.
Same case, 3, 1, 1 and 3. Now see the names. This is but1ene and here it is but2ene. Okay. Yes, Priyanshu. We have to show only the change in position of double bond here. And third one, functional group isomerism. Functional group isomerism. What is meant by functional group isomerism? Molecular formula must be same, but difference in the functional group, nature of functional group. Okay, तो मैं यहाँ पे सेम फिर से C4H8 मैं ले रहा हूँ. Otherwise, I will take even smaller than this. C3H6. What is functional group isomer of alkenes? Anybody? Functional group isomer of alkene. Functional group isomer of alkene. कोई बता सकते क्या? Functional group isomer of alkene. No, no, Kabir. Molecular formula will be different, na, Kabir? How it is alcohol and ketone? Yes, we see. Priyanshu. Yeah. Priyanshu Sharma, very good, beta. देखिए, case of CnH2n molecular formula, we have two functional group isomers. One is alkene and second one cycloalkane. Okay, it is correct. And one form exists in open chain form and one form exists in closed chain form. That is why these are also known as ring chain isomers. Okay, ring chain isomers, not alkyl sugar. अभी देखिए यहाँ पे C3H6 हम लोग एग्जाम्पल लिए और फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करना है. 3 carbons, one must be in open chain, okay, and double bond right at one of the carbon. Now here we have to write 3 hydrogens, here 1 hydrogen and here again 2 hydrogens. ये हो गया प्रोपीन. ठीक है, this is propene. Now we have to write its functional group isomer and that is cycloalkane. So what is possible cycloalkane here? Simply cyclopropane. Okay, cyclopropane. Is it clear? Please note down position and functional group isomerism. और सबको हो गया ना? Yes, really good. Yes. Okay, very good. Now, write a question. Write possible number of monocyclic structural isomers of C5H10. Right, possible number of monocyclic structural isomer. Question properly पढ़िए और कितना आइसोमर्स पॉसिबल है उसका स्ट्रक्चर्स भी लिखना पड़ेगा. पहले तो नंबर बता दीजिए कितना पॉसिबल है.
ट्राई कीजिए सब लोग, एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, द टू IIT एडवांस क्वेश्चन है जी वाला, बट इजी लेवल है। How we answer C5H10? We have to write only cyclic structural isomers. No need to write open chain. ओम सोनी फिर से बट ट्राई करो बेटा। Who is this? Priyanshu. Yes, good. Good, Priyanshu. Very good. Very good. Perfect answer. श्रेया और ट्राई कीजिए, ध्रुवी आप भी। पूरा पूरा वेरी गुड बेटा। यस गार्गी गुड। आज थोड़ा कम हो गया। देखिए कुछ बच्चे अच्छे आंसर किए। एंड हु इज दिस? गौरी शंकर, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। कार्तिक थोड़ा ज्यादा हो गया कार्तिक। 9 हाउ? देखिए ओनली मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखना है, साची गुड। सो फर्स्ट वन साइक्लोपेंटेन, okay, cyclopentane. And the next one, by changing number of carbons in main ring, 4 carbons I'm writing ring form and 1 carbon है side chain. Okay, yes 5 good. जो 5 लिखे सबका आंसर सही है, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अभी और एक कार्बन कम कर दीजिए एंड 2 कार्बन्स लिख दीजिए एज ए साइड चेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर इसी का हम लोग और भी एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 2 कार्बन्स एक ही साइड चेन में लिए, तो ऐसे भी तो ले सकते हैं हम लोग 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यार अगर हम लोग 1,2 पोजीशन में लिख रहे हैं, करेक्ट रिद्धि, देन एक ही पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो आंसर हो रहा है 5। इससे ज्यादा कुछ पॉसिबल होगा क्या? नॉट पॉसिबल, ओनली 5 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। ओके, प्लीज नोट। इवन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी लाइट नहीं लेना है। नीट लेवल मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म तो और इजी लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन नीट लेवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ऑप्टिकल, मतलब छोटे बच्चों का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। हो गया ना। देन नेक्स्ट वन, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो गया। देन नेक्स्ट वन स्टीरियो आइसोमरिज्म, stereoisomerism in alkanes. And again here, first one, geometrical isomerism. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से इजी क्वेश्चंस आएगा मेंस एंड नीट लेवल में। एडवांस लेवल में तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल कंबाइन करके क्वेश्चन पूछेगा एडवांस लेवल में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या बताइए? व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? उसके बाद तो सिस ट्रांस आप लोग जानते ही है, बट व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन? डबल बॉन्ड, ओके। और ओनली डबल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, सबका आंसर वही आ रहा है। और जो डबल बॉन्ड नहीं है उसमें भी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। ऑफ कोर्स इन अल्केन्स में डबल बॉन्ड तो चाहिए, बट ओनली डबल बॉन्ड रहने से हो जाएगा क्या? मान लीजिए मैं ऐसे स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? यस प्रेम, वेरी गुड बेटा। sp3 केस होगा बेटा श्रेया? sp3 पॉसिबल नहीं है ना, sp2 कार्बन सही है,
And due to restricted rotation only, we are getting geometrical isomerism. Very good, Priyanshu. Good. प्रेम का प्रियांशु का आंसर सही है. See, in case of alkenes, बाकी केस हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे. देखिए, the double bonded carbons, the condition to exhibit geometrical isomerism, double bonded carbons must be connected to two different groups. क्या वो कंडीशन? जैसे देखिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A है और A. ऐसे वाले केसेस में एग्जिस्ट करेगा? पॉसिबल नहीं. सिमिलरली A, यहाँ पे A है और यहाँ पे टू सेम ग्रुप से बट डिफरेंट B भी है, और ये वाला केस में पॉसिबल होगा? Again, geometrical isomerism is not possible. According to our condition, each double bonded carbon must be connected to two different groups like AB and here also AB. तो ये वाला केस में पॉसिबल होगा. और C डबल बॉन्ड C, AB और यहाँ पे AC, तो ये वाला केस में भी एग्जिस्ट करेगा. AB और यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट ग्रुप CD. तो ये वाला केस में सिस ट्रांस पॉसिबल होगा क्या? ज्योमेट्रिकली इज पॉसिबल, ओके, बट सिस ट्रांस पॉसिबल होगा क्या? Then good, Sachi. Then which type of isomerism is possible here? When all four different groups are present at each double bonded carbon, then which type of isomerism is possible? Diastereomer, no. एक स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे. वेरी गुड. Who is this? Yes, Sony, very good. Good. Here, when all four groups are different, then EZ isomerism we have to show, not syn and anti. Here, E and Z. Okay. Please note. कुछ डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप लोग. हो गया ना? यस, गुड. और देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इवन फॉर नीट, मेंस एंड एडवांस. नीट एंड मेंस के लिए तो अपना क्लासरूम का नोट सफिशिएंट है. एडवांस कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एडवांस में क्वेश्चंस कैसे आएगा? जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा. ओके, सो हम लोग नीट लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे. ठीक है ना? नीट एंड मेंस के लिए तो ये वाला नोट्स सफिशिएंट है. इससे एक क्वेश्चन भी आपको मतलब कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा. ओके, देन नेक्स्ट वन. देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है. कितना इजी क्वेश्चन है देखिए. Which of the following shows geometrical isomerism? Which of the following shows geometrical isomerism?
ऑप्शन ए 1-butene, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी ईथीन, ऑप्शन डी ब्यूटोइन। अगर ये भी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए तो क्या करना है? देखिए पूरा वेरी गुड, पूरा वेरी गुड। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएगा मेंस एंड नीट लेवल में। नीट लेवल पे ऐसी क्वेश्चन आएगा बेटा। ये सबका आंसर सही है। तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ओनली ऑप्शन डी में। देखिए ब्यूटोइन का स्ट्रक्चर है ना, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। हो गया आंसर। बट बाकी वाले केसेस में देखिए कभी भी 1 अल्कीन्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम होगा। ठीक है, सेम केस प्रोपीन आल्सो, इथीन आल्सो। सो आवर आंसर इज डी। ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्या आप आराम से? ओके अब मैक्सिमम और एक क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है ना, हो गया ना। देन नेक्स्ट वन, सेकंड स्टीरियोआइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Optical isomerism in alkanes. What is the primary condition to exhibit optical isomerism? It may be alkane, alkene, जो भी है, प्राइमरी कंडीशन क्या है बताइए? बाप रे कितना सारा आंसर आ चुका है। हाँ, yes, presence of chiral carbons. Very good, very good. Chiral centers. Good, 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 good. आंसर फटाफट आ रहा है। Yes, mirror image relationship. Very good, मल्हार। तो देखिए chiral carbon is necessary condition, but not always, of course. फिर से अलग कॉन्सेप्ट भी। chiral carbon रहने के बाद भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे ऑप्टिकल इनएक्टिव। So the primary condition to exhibit optical isomerism is absence of symmetry elements, है ना? Yes, yes, very good प्रेम, good। प्रेम आज का आप आज बहुत फॉर्म है यार, अभी तक दिखे ही नहीं आप, फर्स्ट टाइम दिख रहे हो, आंसर फटाफट दे रहे हो। वेरी गुड, डाइसिमेट्रिक, गुड कशिश, डाइसिमेट्री, एसिमेट्री, यस, गुड गुड गुड। तो देखिए, तो प्राइमरी कंडीशन जो है उसी से हम लोग आंसर कर सकते हैं। chiral कार्बन तो होना चाहिए, तो मैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाला कार्बन को, बट उसमें एक मैं ले रहा हूँ डबल बॉन्डेड कार्बन, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला हो गया अपना chiral कार्बन, सो इट कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ओके, प्लीज नोट डाउन। तो ये हो गया अपना आइसोमरिज्म इन अल्कीन्स। ये तो जस्ट ट्रेलर ही था, असली पिक्चर अभी शुरू होगा। प्रिपरेशन मेथड्स, हो गया ना। चलो शुरू करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। And preparation method, first method we are going to discuss, that is dehydration of alcohols। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? जस्ट रिमूवल ऑफ वाटर।
removal of water molecule from alcohol. Okay, alcohol से पानी निकालना है बस, और कुछ नहीं. But in the presence of what? Acid. Acid catalyze dehydration. देखिए मैं फर्स्ट सिंपल एग्जांपल से शुरू कर रहा हूँ. इथेल अल्कोहल, जो अपना फेवरेट ड्रिंक है, ठीक है, इथेल अल्कोहल. In the presence of acid followed by heating. एक्चुअली क्या है ना, इथेल अल्कोहल से 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस. और यहाँ पे जनरल हम लोग लेते हैं टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड. इससे कम लिए तो कंपाउंड्स अलग अलग होगा, और हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकालना है जस्ट वाटर फ्रॉम अल्फा एंड बीटा कार्बन्स. ओके, सो अगर सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग चेक करेंगे, तो सिंपल फॉर्म है. देखिए यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए टुवर्ड्स OH, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए टुवर्ड्स कार्बन. सो जस्ट वी हैव टू रिमूव वाटर फ्रॉम alpha and beta carbons. Alpha carbon means the carbon which is directly connected to functional group. Adjacent carbon is known as what? Beta carbon. Okay, so alpha carbon से OH निकाल दीजिए and beta carbon से hydrogen. So what is our resultant product? देखिए alpha carbon पे आएगा positive charge और beta carbon पे आएगा negative charge. And if you have two different charges and adjacent carbons, then we get डबल बॉन्ड बिटवीन दैट टू कार्बन्स, इथिलीन. तो ए वाला हो गया अपना शॉर्टकट. ओके, बट शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट. ओके, व्हेनेवर कार्बोकेटायन इन्वॉल्व्स एज इंटरमीडिएट, देन अपना एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होगा. ओके, पहले यहां तक लिख लीजिए, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इसका. यहां तक क्लियर है ना? ये शॉर्टकट क्लियर है ना? यस, वेरी गुड. कुछ नहीं बेटा, इसका क्या करना है ना, अल्फा कार्बन से OH निकाल दीजिए और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लिखना है. और देखिए मैं और भी सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, अगर बॉन्ड ब्रेक करना आपको मुश्किल हुआ तो देखिए, जस्ट HNOH रिमूव कर दीजिए. ठीक है ना, HNOH रिमूव करके ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लिख दीजिए. दैट इज अवर alkene formation. ओके, अभी शुरू होगा मैकेनिज्म और धीरे धीरे लगेगा, जोर का झटका धीरे से, बहुत सारा ट्विस्ट होगा मैकेनिज्म्स में. हो गया नहीं वाला? ओके देन चलो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे अभी. थोड़े यहाँ पे ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल ऑन करके इधर उधर नहीं देखना बेटा. क्योंकि ये वाला रिएक्शन बार बार आपको रिपीट होगा डिफरेंट चैप्टर्स में. फिर से अल्कोहल चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा. तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप जो है, रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एसिड. यहाँ पे H+ आयन मतलब जनरली फ्रॉम H2SO, जो अपना सिलेबस में हम लोग लेते हैं. ओके, H+ आयन इज फ्रॉम आइदर H2SO4, ठीक है, और H3PO4.
कोई भी एक एसिड हम लोग यूज कर सकते हैं. इन एडिशन टू दिस इवन वी कैन यूज लुईस एसिड लाइक Al2O3. बट अपना सिलेबस में इंपॉर्टेंट वन क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड लाइक H2SO4 एंड H3PO4. ओके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे इनिशिएट होगा देखिए. अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स. ओके, 2 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन रिच है. एंड व्हाट अबाउट H प्लस आयन? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, बट वो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग निकाल देंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा. इसका कॉन्फिगरेशन क्या था? 1s1. अगर ये भी इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो क्या होगा? H प्लस आयन मिस होगा. ओनली 1s ऑर्बिटल बचेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन. मींस दिस ऑर्बिटल इज कंप्लीटली वेकेंट. And ions are molecules containing vacant orbitals or Lewis acids, and they can observe electron pair from Lewis bases. Is it clear? ये वाला स्टेप समझ में आ गया ना? H प्लस आयन Lewis एसिड है, वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, तो ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपना तरफ खींच रहा है. ठीक है ना? तब क्या होगा? ये दोनों के बीच में एक न्यू बॉन्ड प्रोड्यूस होगा. Which type of bond it is? Hydrogen is taking electron pair completely, means oxygen is electron pair donor, H plus ion is electron pair acceptor, so it is losing its electron pair. So yes, coordinate bond, very good. So here we get positive charge. Okay, positive charge over oxygen. So what is name of the step here? We are using proton, so name of the step is protonation. Okay, proton attacks on oxygen of alcohol, so it is protonation. ठीक है, ये वाला हो गया अपना फर्स्ट स्टेप. और सेकेंड स्टेप देखिए, ये वाला सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है. एंड एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन लाइक आयनिक रिएक्शन एंड वेरी फास्ट रिएक्शन. बट द सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड स्टेप यहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन O प्लस इज होपलेस, मीन्स हाईली अनस्टेबल, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, and if positive charge develops over that more electronegative atom, then its electronegativity further increases and it withdraws electron density of adjacent carbon. तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? ऑक्सीजन के तरफ ब्रेक हो जाएगा. तब जाके कार्बन के ऊपर चार्ज क्या हो रहा है? देखिए, पॉजिटिव चार्ज. एंड ये वाला स्टेप में वाटर रिमूव हो रहा है. एंड दिस इज द की स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, बाहुबली ऑफ मैकेनिज्म, स्लो स्टेप. ठीक है, की स्टेप है, मतलब पूरा रिएक्शन ए वाला स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे ए वाला स्टेप के ऊपर. ठीक है ना? एंड ये वाला स्टेप में देखिए हम लोग क्या रिमूव कर रहे हैं? वाटर. एंड रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. ओके, एंड ये वाला स्लो स्टेप में जो प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन, सो वी आर गेटिंग कार्बोकेटन एज इंटरमीडिएट. सो कौन सा इंटरमीडिएट हो रहा है यहाँ पे? कार्बोकेटन. बेटा याद रखना, कार्बोकेटन कोई भी रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व हुआ तो if possible we have to try for rearrangements like 1,2 hydrate shift, 1,2 methyl shift, ring expansions, if possible ring contractions. Okay, so mainly ring expansions, 1,2 hydrate, 1,2 methyl shift important है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. रिंग कॉन्ट्रैक्शन केसेस है, बट वो हम लोग दूसरा चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? तो ये वाला हो गया कार्बोकेटन फॉर्मेशन एज इंटरमीडिएट. अभी आ गया अपना थर्ड स्टेप, क्लाइमैक्स. तो इसमें क्या होगा? CH2, CH2,
ये वाला कार्बोकेटन है, मैं ये वाला हाइड्रोजन को सेपरेट लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग H2SO4 ले रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 में ओनली 1 H+ रिएक्शन इन्वॉल्व हो चुका है, बाकी क्या होगा H+ और रिमेनिंग होगा HSO4-। सो व्हाट इज रोल ऑफ HSO4- नाउ, बेस है वो। अगर H3PO4 लिया तो H2PO4- N is base. So what is role of base? Always you try to obstruct H+ ion, तब जाके ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स बीटा कार्बन। तो फिर से यहाँ पे H2SO4 रीजनरेट हो रहा है जी इक्वेशन में। So what is role of H2SO4? Catalyst. That is why this mechanism is also known as acid catalyzed dehydration. Okay, acid catalyzed dehydration. अभी यहाँ पे चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हो रहा था, नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में क्या हो, आ गया अपना डबल बॉन्ड, है ना। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, अल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स। ओके, अच्छा आप लोग ऐसे बोल रहे क्या, ठीक है ठीक है, चलेगा 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 पूरे। तो यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ H+ है, रिमूवल ऑफ H+ इज नोन एज व्हाट, डीप्रोटोनेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में एक बार देखिए मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप, electron pair of oxygen is accepted by H+ ion. So we are getting highly unstable oxonium ion type of structure, which is called what, protonation. Protonation में क्या हो रहा है, positive charge and oxygen produce हो रहा था, which is highly unstable. So the sigma bond breaks towards oxygen. As a result, we are getting carbocation as intermediate, which is our slow step of mechanism. Okay, slow step के ऊपर ही rate of reactions depend करेगा, ठीक है। इसलिए रेट स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS. व्हाट इज मीन बाय RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये वाला याद नहीं रखे तो RDS अपने लिए RDX बन जाएगा, ठीक है। वेरी गुड देवंश, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो उसके बाद देखिए कार्बोकेटन प्रोड्यूस हुआ था, वहां से हम लोग H+N रिमूव कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे अल्कीन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, इज इट क्लियर, एनी मोर डाउट्स हियर इन मैकेनिज्म? सो ये वाला रिएक्शन में कार्बोकेटन इंटरमीडिएट हो रहा है जी, ठीक है ना। सो कार्बोकेटन इंटरमीडिएट हुआ तो मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1 मैकेनिज्म, unimolecular elimination. Okay, please note. Yes, Jayendra, yes. Yes, aluminum oxide is also Lewis acid ना, ठीक है। उसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीजन donates its electron pair to aluminum. Instead of that H+N, we have to write aluminum. Rest is same, ठीक है। कोई कार्बोकेटन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा एंड देन रिमूवल ऑफ H+N. E1 मैकेनिज्म बेटा देखिए, जैसे हम लोग स्लो स्टेप में ले रहे हैं, स्लो स्टेप में कितना मॉलिक्यूल सर आयन्स इन्वॉल्व हो रहा है, ओनली 1 मॉलिक्यूल, है ना। अगर स्लो स्टेप में हम लोग चेक करेंगे, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, rate of reaction depends on only oxonium ion, that is ROH2 plus. तो एक ही आयन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है एंड
only one molecule. So order of reaction is 1. And how many molecules are involved? Only one molecule. So molecularity is 1. And we are removing hydrogen and OH from adjacent carbons. That is why it is known as unimolecular reaction. And E1 का मतलब overall क्या होगा? Yeah, 1 represents unimolecular and E represents elimination. So in overall we can say that it is unimolecular elimination. Okay, unimolecular elimination reaction is known as E1. ठीक है ना? अल्कोहल्स में हमेशा E1 ही होगा और E1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा? हाँ लिख लीजिए ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohol, more reactive than primary alcohols. ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट. यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला बेस करके हम लोग रिएक्टिविटी भी डिसाइड कर सकते हैं. सो दिस ऑर्डर इज बेस्ड ऑन stability of intermediate. Okay, that is carbocation. डायरेक्टली कार्बोकेटायन ही लिख लीजिएगा. ओके, प्लीज नोट. ओके ना? इसमें कोई डाउट है? और तो चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम लोग. इसका मैकेनिज्म समझ में आया ना? ठीक है. Now write some examples.
इसका आंसर कीजिए। वही आंसर्स। आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म्स में पूरा रिएक्शंस पढ़े थे ना, लाइक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, पहले पढ़े थे ना ऑलरेडी। यस प्रेम, करेक्ट आंसर। बट बेटा प्रोब टू इन होगा क्या? उसमें तो डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन में होने के चांस है ना। जयेंद्र, देखिए हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज किए थे, याद है क्या कर रहे थे हम लोग? एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH निकाल रहे थे, है ना। जहां से हम लोग निकाल रहे वो दोनों कार्बन के बीच में जस्ट और एक बॉन्ड लिखना है, ठीक है। यस आदित्य, परफेक्ट आदित्य, वेरी गुड। यस प्रेम, नाउ इट इज ओके। कार्तिक, ओके गुड। ओहो, हु इज दैट जयेंद्र? ओके, फर्स्ट वन आंसर सब लोग भेज रहे, बढ़िया है। और बाकी यस प्रेम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रेम आज पूरा फॉर्म में। ओके ओके जयेंद्र, ओके। यस ध्रुवी, परफेक्ट। कार्तिक, फिर से एक बार देखना बेटा, उसके साथ में नंबर भी लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज राइट नंबर 1 लाइक प्रोपीन, नंबर 2 डैश। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। वेरी गुड प्रेम, गुड। यस नामन, वेरी गुड। और बस इतना ही, 3 आंसर हो चुका है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन बहुत बढ़िया किया सब लोग। यहाँ से हम लोग OH निकालेंगे और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तब जाके ए वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यस यस रिद्धि, गुड। ए नंबर भेज दो ना, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, प्रोपीन, है ना। अब ये वाले केस में भी वही करना है, ए बॉन्ड ब्रेक ओवर टुवर्ड्स OH, और either from here or from here or from here, just remove one hydrogen, क्योंकि तीनों मिथाइल ग्रुप सेम ही है यहाँ पे, तो आपका फेवरेट डायरेक्शन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हो गया आइसोब्यूटिलीन, है ना। और ए वाले केस में जैसे हम लोग ये यहाँ से OH निकालेंगे, either from this side or from this side, we can remove hydrogen, so we get cyclohexene, ठीक है ना, cyclohexene, is it clear? Now
ये वाले केस में देखिए, ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से यहाँ पे हम लोग ये वाला बाइसाइक्लो कंपाउंड से बैठे। सो ये वाला हो गया अल्फा कार्बन अपना, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन, और ये वाला भी बीटा हाइड्रोजन। तो मान लीजिए यहां से हम लोग बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो डबल बॉन्ड, जस्ट अ मिनट, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो, है ना। बट यहां से अगर हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तब कौन सा प्रोड्यूस होगा, देखिए मैं ये साइड में लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड होगा यहाँ। सो विच इज पॉसिबल हियर एक्चुअली, ये वाला पॉसिबल होगा और ये वाला। हुँ? कौन सा पॉसिबल होगा, ये दोनों पॉसिबल होगा। प्रियांशु, yes, 4 answers perfect है बेटा। फर्स्ट वन, राइट साइड मतलब ये वाला ना। ओके ओके देवी, यस प्रेम गुड। ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ये वाला बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सेकेंड वन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं बेटा, एक्चुअली कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन बता सकते कि कोई, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, एनीबॉडी? यस, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बट ये वाला एक्चुअली ये वाला रिएक्शन में नहीं है, कभी प्रोड्यूस होगा ही नहीं ये वाला। ब्रेड स्टूल, वेरी गुड साची। बट ब्रेड स्टूल क्यों बताए, और ब्रेड स्टूल हम लोग लिखने वाले हैं अभी। ब्रेड स्टूल तो लिखेंगे, बट व्हाट इज द रीजन फॉर ब्रेड स्टूल? यस वेरी गुड परफेक्ट, बट व्हाई? प्रेम, रोडिंग हेवी ग्रुप, ब्रिजेड के sp3 कार्बन, ओके ठीक है, ऑलमोस्ट सही है, वेरी गुड। ठीक है, ब्रेड स्टूल लिखने से पहले और एक ये भी करेंगे हम लोग। sp3 is allowed but not sp2, कबीर, ठीक है बेटा। तो ये वाले केस में देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला है अपना बीटा हाइड्रोजन। सो ये वाला बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं, ये वाला बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं, और ये वाला बीटा एलिमिनेशन कर सकते हैं। बट करने से प्रॉब्लम क्या होगा, अगेन एट ब्रिज हेड कार्बन वी गेट डबल बॉन्ड विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर फिर से एग्जिस्ट करेगा। देखिए कहां से भी अब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आए, बट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रेडस्टूल, in elimination reactions, in elimination reactions of bicyclo compounds, double bond formation, double bond formation must be away from bridgehead carbon, must be away from bridgehead carbon. That is our breadstone. In elimination reactions of bicyclo compounds, double bond formation must be away from bridgehead carbon. Bridgehead carbon.
इट इज ड्यू टू, क्या लोगे ना, पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, रिएक्शन नोट कर लीजिए, उसका रीजन भी कंटिन्यू करेंगे. हो गया ना. So elimination reactions of bicyclo compounds. Bridge double bond formation must be away from bridgehead carbon. It is due to radon bond angle strain. It is due to bond angle strain. What is bond angle strain? Anybody? Bond angle strain. Any idea about bond angle strain? Yes, very good. Very good, Dhruvi. Decrease in stability of molecule due to deviation in bond angle. Okay. बॉन्ड एंगल स्ट्रेन का मतलब लिख लीजिए वो भी. मेंस लेवल तक तो नहीं पूछेगा, लेकिन एडवांस लेवल में पूछ सकते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चंस. बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, the decrease in stability of a molecule due to deviation in bond angle is called bond angle strain. तो ये वाला केस में देखिए, अपना बाइसाइक्लो कंपाउंड्स वाला केस में बता रहा हूं. देखिए, जो ब्रिडजेड कार्बन, पहले ब्रिडजेड कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3. ठीक है, sp3. So tetrahedral carbon. Overall, the nature of molecule is non-planar. Non-planar and bicyclo compounds are stable in non-planar form. इसका प्लानर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. इवन साइक्लोहेक्सेन अगर हम लोग लेंगे, साइक्लोहेक्सेन का भी प्लानर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. सो यहाँ पे तो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो इसका प्लानर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. बट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट ब्रिज हेड कार्बन, तो मान लीजिए हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे लिख देंगे, तब ये वाला कार्बन के ऊपर हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये बन जाएगा sp2 प्लानर एंड 120 डिग्रीज. यहाँ पे 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, है ना. सो यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल का डिविएशन हो रहा है. whenever a compound involves deviation bond angle, then its stability decreases. तो इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. ठीक है ना. इज नोट. और कुछ भी डाउट रहे तो पूछिए. हो गया ना. एनी डाउट्स? ओके, वेरी गुड.
और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे भी। एक मिनट बेटा, एक क्वेश्चन देके मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा काव्य। देखिए हर तरीका के एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। अभी ये वाले एग्जाम्पल्स कीजिए। यस कार्तिक, ओके कबीर। प्रीवियस वाला चाहिए ना, एक मिनट इनको प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे, एक मिनट। काव्य थोड़ा जल्दी नोट कर लेना बेटा। है ना ध्रुवी? लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मतलब नो, मतलब आंसर कुछ हो गया नहीं उसका, नो रिएक्शन है ना। फिफ्थ वाल का नो आंसर, नो रिएक्शन। हो गया ना काव्य? वन ब्यूटी टू ब्यूटी, अच्छा प्रेम, ओके ओके। हो गया सबका? अभी देखिए यहाँ से मैं बीटा हाइड्रोजन सेपरेट लिख रहा हूँ। ये वाला हो गया अपना अल्फा कार्बन, है ना। एडजेसेंट कार्बन्स आर नोन एज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन्स, एंड हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन। ओके ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख के दूसरा स्लाइड में उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल क्लियर हो तो बाकी आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं सेपरेट लिख रहा हूँ इसका। देखिए तो with respect to functional group, this is alpha carbon, so this is beta and this one is also beta। तो अभी अपने पास दो ऑप्शंस है, जैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड में डिस्कस कर रहे थे। ये वाला OH क्या ना ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे टू ऑप्शन है। देखिए ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं हम लोग, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तब प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये वाला प्रोड्यूस होगा ब्यूट 2A, है ना। अभी यहाँ पे देखिए इसको तो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, बेचारा ये क्या करेगा, ये फिल नहीं होगा क्या, तो इसको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो बीटा हाइड्रोजन ही है ना। सो दोनों को निकाल के देखेंगे, इसको रिमूव कर दीजिए। अगर इसको हम लोग रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बात है प्रियांशु, वेरी गुड। देखिए ये वाले केस में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो अभी डाउट क्या है अपना, ये दोनों में कौन सा पॉसिबल होगा। बेटा दोनों भी पॉसिबल होगा, तो दोनों इक्वल परसेंटेज में पॉसिबल होगा क्या, वो अभी अपना डाउट है। यस यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे विच इज मोर इन परसेंटेज एंड विच इज लेस इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ सम फॉलोइंग प्रोडक्ट।
सॉरी रिएक्टेंट। तो इसके लिए यस, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड प्रिया। तो इसके लिए अपने पास एक रूल है, Saint-Jacques rule. Okay, according to Saint-Jacques rule, in elimination reactions, the more stable, or we can write more substituted, alkene is major. Okay, अगर मोर देन वन प्रोड्यूस होने के चांसेस रहे तो आपको यस, वेरी गुड, ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। Okay, what is Saint-Jacques rule tells us? In elimination reactions, the more stable alkene is a major product. अभी और फिर से और एक डाउट आने के चांसेस है आपको, हाउ टू डिसाइड which is more stable, which is less stable? बेटा हम लोग पढ़े थे जीओसी में, and that is हाइपर कॉन्जुगेशन, आइडिया है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सो स्टेबिलिटी ऑफ alkenes हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, देखिए ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, विथ रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है अल्फा, और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है अल्फा। तो कितना हो गया अल्फा कार्बन? 2 हो चुका है। तो इसके ऊपर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3, और इसके ऊपर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 3 + 3, बढ़िया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे हो रहे 6 अल्फा हाइड्रोजन। और ये वाले केस में with respect to this double bonded carbon, this is alpha carbon, this is beta carbon. Beta, don't touch beta. Okay beta, don't touch beta, only we have to observe alpha. Okay, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? only 2 alpha hydrogens. Now according to a hyperconjugation concept, the alkene containing more number of alpha hydrogens is more stable, and more stable is measured according to our Saint-Jacques rule. Saint-Jacques या J-SEP दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। J-SEP और Saint-Jacques, कुछ बुक्स में J-SEP यूज करते हैं और कुछ बुक्स में Saint-Jacques। फिर से ये नहीं बोलना है कि सर रवि सर ये वाला बताया नहीं, दोनों सेम है बेटा। ओके, और ये वाला लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, तो ये वाला क्या होगा? लेस स्टेबल अल्कीन, एंड लेस स्टेबल अल्कीन क्या होगा? माइनर इन परसेंटेज। ओके, more stable is measured in percentage and less stable is minor in percentage. Is it clear? Any doubt? Please note down. कंटिन्यूअसली 4-5 रिएक्शन से हम लोगों को ऐसी एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला क्लास में थोड़ा आपको लेट लग रहा होगा, बट बाकी रिएक्शंस में भी एक कॉन्सेप्ट फिर से इन्वॉल्व होगा, तो वहां पे आपको टाइम सेव हो जाएगा। हो गया ना? यस, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? प्रीवियस स्लाइड में यस ध्रुवी, अभी देखिए ये वाला तो आंसर हो चुका है अपना, अभी यहाँ पे आएंगे। तो अभी थोड़ा बताइए प्रेम, आप तो प्रियांशु सॉरी, एक एक प्रोडक्ट ही लिख के बताइए, है ना? बट यहाँ पे क्या होगा बेटा? मोर देन वन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ओके, जैसे यहां से अगर हम लोग OH निकालेंगे, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा,
and this one is also beta. तो हम लोग दोनों ऑप्शंस ले लेंगे. यहां से OH निकालने के बाद ये वाला बीटा हाइड्रोजन मैं रिमूव करके देख रहा हूं. ओके, यहां से OH गया और यहां से H, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे. और ये वाला केस सेकंड केस में, यस यस, वेरी गुड प्रेम. तो यहां से अगर OH निकल गया, यहां से और एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं हम लोग, बीटा हाइड्रोजन. तो ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे. बट विच इज मेजर्ड इन परसेंटेज, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा देखिए. मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक स्लाइड में. डबल बॉन्ड, ये वाला हो गया 3 हाइड्रोजन्स और ये वाला हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन्स. ओवरऑल here we are getting 5 alpha hydrogens. But second केस में डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखे हम लोग. So with respect to double bond, 2 alpha hydrogens here and a 1 alpha hydrogen. So how many alpha hydrogens we are getting? 3 only. So which is measured in percentage? This one. Is it clear? More number of alpha hydrogens, so more stable. तो ये वाला हो रहा है मेजर वन. ओके, और ये वाला होगा माइनर. ठीक है, 7 alpha hydrogens. How? अच्छा, ओके, वेरी गुड. वो वाला साइड का लिया है नहीं, वेरी गुड. ये वाला भी तो है अल्फा हाइड्रोजन्स, गुड. यस, वेरी गुड. 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, करेक्ट बेटा. हो गया ना. तो ये वाला हो गया मेजर और ये वाला हो गया माइनर. अभी सेम केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग. तो ये वाला हो गया अपना अल्फा कार्बन. सो वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर. दोनों ऑप्शंस हम लोग फिर से लिखेंगे. अगर मान लीजिए यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. अगर यहां से अल्फा बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड बाहर आएगा. नाउ व्हिच इज मोर स्टेबल अगेन, फर्स्ट वन और सेकंड वन? कौन सा मोर स्टेबल है? यस, अगेन सेम ना. यहाँ पे भी 7 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 7 होगा, 7. सो दिस इज मेजर वन और ये वाला हो गया अपना माइनर. ठीक है, अब ये वाले केस में ये वाले केस में आंसर क्या होगा? एनीबॉडी, लास्ट वन. Only one structure? No. इसमें भी 2 स्ट्रक्चर आएगा. वेरी गुड प्रेम, वेरी गुड. क्या बात है प्रेम, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो यार. रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा कभी, क्योंकि ऑलरेडी 6 मेंबर रिंग है. ये दोनों पॉसिबल होगा. वो कैसे होगा अभी हम लोग चेक करेंगे. बट ये वाला चेक करने से पहले क्या ना, इससे थोड़ा छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए.
एक लास्ट एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे। यस यस, वेरी गुड सोनी, गुड। यस ध्रुवी, यही एग्जांपल अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट ये वाला एक्सप्लेन करने के लिए क्या ना, और एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये वाला क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए, ये वाला देखिए, इसमें एक ही साइड में आपको बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला साइड में, ये वाले साइड में तो बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड अमी। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होना चाहिए, बट आंसर ये वाला नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा तब, यहाँ पे आंसर होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन, ये वाला एक्चुअल प्रोडक्ट एंड दैट टू मोर स्टेबल, है ना। ये वाला कैसे होगा, बिकॉज ऑफ मिथाइल शिफ्ट, ओके, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, प्रीवियस वाले केस में भी वही होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो एक बार ये वाला एग्जांपल हम लोग मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे, उसके बाद रेस्ट लीजिए आप लोग, ओके। तो ये वाले रिएक्शन में क्या होगा, देखिए, तो अपना प्रोटोनेशन और डिहाइड्रेशन के बाद लास्ट स्लाइड चाहिए क्या, ठीक है। हो गया ना, या so yeah, see what is the first step, donation of electron pair, okay, then पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, and after removal of that water we are getting here secondary carbocation as intermediate, ठीक है, secondary carbocation as intermediate, but secondary carbocation is less stable than tertiary carbocation, and here we have chance to get more stable tertiary carbocation, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स मिथाइल और ये वाले शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, तब जाके देखिए ये वाला होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और कार्बोकेटन क्या होगा, अभी ये वाला प्रोड्यूस हो रहा है टर्शियरी कार्बोकेटन, और मिथाइल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर चुका है टर्शियरी विच इज मोर स्टेबल, ठीक है ना, सिंपल लॉजिक है जी, सेकेंडरी कार्बोकेटन स्टेबल ही है, बट उससे ज्यादा अगर मोर स्टेबल प्रोड्यूस होने के चांसेस है तो क्यों मिस करेगा,
मान लीजिए हम लोग 1 करोड़ रुपया ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं जी, अपना टारगेट है 1 करोड़ का, अपने पास आ चुका है, कमा लिया हम लोग, तो वहां पे हम लोग रुक जाएंगे क्या? 1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे बनाने हैं, वो उसके लिए ट्राई करेंगे, है ना? सेम थिंग हियर आल्सो, ऑलरेडी सेकेंडरी कार्बोकेटियन स्टेबल, somewhat stable, but here it has chance to get more stable than itself. That's why here bond undergoes cleavage towards methyl group. Then we are getting more stable carbocation. Now from here, if you remove this hydrogen, we can remove this one or this one or this one also. If you remove this hydrogen, then we get a more stable alkene. ये वाला मेजर हो गया, ओके। अगर मान लीजिए ये दोनों आइडेंटिकल है ना, तो ये दोनों से कोई भी अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे हम लोग, then we get less stable alkane, which is minor in percentage. Okay, please note. नोट कर लीजिए। हो गया ना? तो सेम केस बेटा अब इसमें भी करना है, जो अपना लास्ट एग्जाम्पल है इसमें भी वही करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको ये वाला बॉन्ड निकालने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका मैकेनिज्म। प्राइमरी कार्बोकेटन प्रोड्यूस हो और यहाँ से क्या ना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, तब जाके आपको टर्शियरी कार्बोकेटन प्रोड्यूस हो, ठीक है। फ्रॉम टर्शियरी कार्बोकेटन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर, देन वी गेट these two compounds. Okay, Dhruvi, is it clear? Okay then, आज बहुत टाइम हो गया, तो कल और हम लोग पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन वाला केसेस, in addition to that dehydrohalogenation and their stereochemistry also. Okay, okay then, good night, कल मिलेंगे फिर से, बाय। हो गया ना सबके वाला? रिवाइज करके कल कोड आउट रहे तो पूछ लीजिए फिर से। ओके, बाय बाय प्रियंशु।